Hello and welcome back to Divya Sharma Pharmacy channel. So today in this video we are going to study about the glycosides. In the previous video we had discussed about the alkaloids. Now you already know that alkaloids comes under the secondary metabolites. So glycosides are also comes under the secondary metabolites. In the previous video we had discussed about the alkaloidal definition, their classification, their properties and their uses, and specifically their identification test. So in this video we are going to discuss these same things about the glycosides. Right, before going into this chapter, I want to share something with you, that please follow the guidelines of the COVID-19 situation, because it is a very critical and it is a pandemic situation. So you have to careful about you, about your family and around yourself. So please take proper precautions related to this viral infection, and take care of yourself. So glycosides, first we will discuss about the definition of the glycoside. So what are glycosides? Glycosides, as you already know and we had discussed earlier also, that they comes under the secondary metabolites, means they do not have any function into the growth, development and reproduction of the organisms, plants as well as animals, right? They only produces into the plants, they do not produce into the animals, right? Let's go into the definition. So glycosides are the organic molecules. Okay, so organic, when I say organic molecules, means they contain carbon, hydrogen and oxygen into their structural unit. So glycosides are the organic molecules, or you can say organic compounds, which upon hydrolysis means you add water into it, right? Which upon hydrolysis give two parts. One is glycon and second is aglycon, right? So upon hydrolysis, glycosides give two important parts, or you can say two major parts. One is glycon and second is aglycon. Now glycon means your sugar part and aglycon means your non-sugar part. As its name suggests that it is a aglycon. Glycon means sugar and aglycon means glycon part हट गया है, A मतलब उसका निकल गया है, तो नॉन शुगर पार्ट है वो, राइट? तो इसको फर्दर स्टडी करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि ग्लाइकोसाइड्स की अल्टीमेटली हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई थेरापेटिक एक्टिविटी होती है और वो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट? सो अल्कलॉइड्स की भी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस थे कुछ, जैसे कि एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल, तो ये कुछ एक्शंस हैं उसके। सिमिलरली ग्लाइकोसाइड्स के भी आपके बहुत सारे एक्शंस हैं। तो वो मेन एक्शन जो है वो किस वजह से आते हैं, क्योंकि अल्कलॉइड्स के केस में ऐसा नहीं था कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहे हैं, बट ग्लाइकोसाइड्स के केस में ऐसा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी कि जो भी एक ग्लाइकॉन पार्ट है हमारा, यानी कि नॉन शुगर पार्ट, सिर्फ उसकी ही हमारी थेरापेटिक एक्टिविटी होगी। थेरापेटिक मीन्स उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, मतलब कोई ना कोई वो बॉडी के अंदर जाकर एक पर्टिकुलर एक्शन शो करेंगे, राइट? ग्लाइकोन जो है पार्ट, यानी कि आपका शुगर पार्ट, वो बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है, बट बॉडी के अंदर जाके वो एटीपी को जनरेट करता है, मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दैट्स इट, उसका ये काम है। बट ए ग्लाइकोन पार्ट आपका मेन पार्ट है, जिसका मेन एक्शन आपका थेरापेटिक है, जो कि कुछ ना कुछ आपके बॉडी के अंदर जाके एक्शन शो करेगा, राइट? तो ये है आपकी डेफिनेशन ग्लाइकोसाइड्स की। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं दैट ग्लाइकोसाइड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव टू मेजर पार्ट्स. One is glycon and second is aglycon part. Aglycon part is also known as non-sugar part and glycon part is called as sugar part, right? aglycon part को बच्चों हम जेनिन part भी बोल सकते हैं, right? जेनिन part is also the synonym of the aglycon part, right? तो ये है आपका ग्लाइकोसाइड्स के बारे में कि ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो क्या होते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन.
सो ग्लाइकोसाइड्स को हम 3 वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक एक्टिविटी. मीन्स ये बॉडी के अंदर जाकर कौन सी ऐसी थेरापेटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जब हम ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई करेंगे वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी आएगी. इसका मैं एग्जांपल बताती हूं, जैसे कि आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. ये वो ग्लाइकोसाइड्स हैं जिनका एक्शन कार्डियक मसल्स या कार्डियक डिजीजेस के अंदर है. कार्डियक मीन्स हार्ट डिजीजेस के अंदर है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. फॉर एग्जांपल योर डिजिटालिस, राइट. डिजिटालिस जो है वो डिजिटालिस लनाटा से आपको ऑब्टेन होता है, और इसके अंदर से हमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मेन फार्मास्यूटिकल कह सकते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है आपके डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, जिनका मेन आपका एक्शन रहता है वो CHF में यानी कि कार्डियोवैस्कुलर हार्ट फेलियर के अंदर यूज होते हैं, राइट बच्चों. तो इसके अकॉर्डिंग कि उसका जो एक्शन है, ड्रग का जो एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्लास के अंदर उसको रखा है, राइट. तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? थेरापेटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग. सेकेंड इज लेग्जेटिव. लेग्जेटिव वो होते हैं जब हमें बॉडी के अंदर स्टूल्स की जो है इवैक्यूएशन करवानी है, इजीली उन्हें पास करवाना है, तब हम उन ड्रग्स को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सेना, कस्कारा एंड रुबाब. तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका लेग्जेटिव एक्शन है, इसलिए ये इस कैटेगरी के अंदर आई हैं, राइट. तो उनके एक्शन के अकॉर्डिंग हमने लेग्जेटिव कैटेगरी के अंदर उनको रख दिया है. देन इसी तरह से आपकी और भी आ सकती हैं, जैसे कि आपकी एनाल्जेसिक, राइट. तो हमने कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड कर दिया है. तो ये है आपकी अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक एक्टिविटी जब हम अपने ग्लाइकोसाइड्स को डिवाइड करते हैं, राइट. नेक्स्ट कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू द लिंकेज. अब लिंकेज से आप क्या समझते हो? देखो, मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो 2 पार्ट्स आपके देते हैं. वन इज ग्लाइकॉन एंड सेकेंड इज ए ग्लाइकॉन, राइट. मीन्स योर शुगर पार्ट एंड सेकेंड इज योर नॉन शुगर पार्ट, राइट. अब इनके बीच में कुछ ना कुछ लिंकेज है, जो क्या उसको लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको बोल सकते हो, कि इस बॉन्ड के साथ आपका ए ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद ये पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, राइट. तो अब लिंकेज के बेसिस पे भी हम ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो कैसे है कि जब आपका ग्लाइकॉन का पार्ट आपके ए ग्लाइकॉन के कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा, तो उस ग्लाइकोसाइड्स को हम बोलेंगे C glycosides, right. So according to the linkage, when they are classified into certain category, they are known as the they comes under the second category classification, right. So similarly, अगर आपका जो ग्लाइकॉन पार्ट है वो कनेक्ट हो रहा है सल्फर के साथ, S के साथ, तब हम उन ग्लाइकोसाइड्स को क्या बोलेंगे? S ग्लाइकोसाइड्स, राइट. तो इसी तरह से अगर आपका N के साथ कनेक्टेड है तो हम उसे बोलेंगे N ग्लाइकोसाइड्स, और अगर आपका ऑक्सीजन एटम्स के साथ कनेक्टेड है तो आप O ग्लाइकोसाइड्स उसको बोलोगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट. तो ये है आपकी सेकेंड क्लासिफिकेशन जिसमें हम ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई करते हैं, राइट. थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली एग्जाम्स के अंदर आप वैसे तो आपको क्लासिफिकेशन में आप तीनों ही दे सकते हो. अगर आपके पास क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है कि आपको ग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन बतानी है तो आप तीनों ही क्लासिफिकेशन बता सकते हो. लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास बहुत ही लंबा क्वेश्चन आया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि इसका जो सिर्फ थर्ड पार्ट है, यानी कि जो अभी मैं क्लासिफिकेशन कराने जा रही हूँ, आप सिर्फ वो दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पर हम जो है किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ए ग्लाइकॉन पार्ट के ऊपर क्लासिफिकेशन.
और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जो आपका मेन पार्ट है दैट इज योर ए ग्लाइकॉन पार्ट, मतलब इसी की आपकी थेरेपेटिक एक्टिविटी है, इसी की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, यही बॉडी के अंदर जाकर एक्शन दिखाएगा। तो इसके बेसिस पे हमें क्लासिफाई करना है अपने ग्लाइकोसाइड्स को। तो कैसे करेंगे हम? जैसा इसका केमिकल नेचर है, जैसा आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट का केमिकल नेचर है, उसके बेसिस पे जब हम ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई करते हैं वो आपकी थर्ड क्लासिफिकेशन आती है, राइट? एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल लाइक योर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। अब ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स वो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनमें ए ग्लाइकॉन जो है वो एंथ्राक्विनोन मोइटी के जैसे प्रेजेंट होता है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो एंथ्राक्विनोन मोइटी के जैसा होगा। तो इसके बेसिस पे हमने मतलब जिन जिन ए ग्लाइकॉन पार्ट में एंथ्राक्विनोन मोइटी प्रेजेंट होगी वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेना, कस्कारा एंड अलॉय। अलॉय आपने सुना होगा, घृत कुमारी जो एलोवेरा है वो आपका आता है, सेना आता है और कस्कारा आता है। तो ये आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं बच्चों, राइट? तो ए ग्लाइकॉन की जैसी मोइटी है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई कर दिया है, राइट? सेकेंड जैसे आपकी क्लासिफिकेशन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, या फिर इसका दूसरा नाम है आपका स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड्स। तो जिन भी ग्लाइकोसाइड्स के अंदर स्टेरॉल मोइटी प्रेजेंट होगी वो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड या स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिजिटालिस, इंडियन स्क्विल या स्क्विल भी इसको बोल सकते हैं हम। तो स्क्विल की जो बाक होती है, डिजिटालिस जो होता है, उसकी क्या मोइटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है? स्टेरॉल मोइटी। तो इसलिए वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या स्टेरॉल ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आ रहा है बच्चों, राइट? तो ये हो गई आपकी दो क्लासिफिकेशन इसकी। फर्दर इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपके फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जनरली आपके किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, राइट? सिट्रस फ्रूट्स के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक क्वर्सेटीन, रुटिन, तो ये आपके फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी मोइटी कैसी है? फ्लेवोनॉइडल मोइटी है, इसीलिए ये इस क्लासिफिकेशन के अंडर आ रहे हैं, राइट? तो इसके अलावा भी आपके पास हैं और क्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड्स, राइट? और आपके हैं आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, राइट? देन योर सेपोनिन्स। सेपोनिन्स को हम फॉर्म ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं। फॉर्म मीन्स झाग जैसा, तो इनको झाग वाले ग्लाइकोसाइड्स भी हम बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो हम आगे जब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे इसके तब जानेंगे। तो सेपोनिन की मोइटी जब जिसके अंदर प्रेजेंट होगी वो आपके सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल योर लिक्वरस, स्टीविया, लाइक दिस, राइट? तो ये है आपका हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? हम ए ग्लाइकॉन पार्ट का जो केमिकल नेचर है या जो केमिकल मोइटी उसके अंदर प्रेजेंट है, हम उसके बेसिस पे अपने ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट? देन नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स। Now you already know that glycosides upon hydrolysis give two parts. So they are water soluble because बिना water soluble के ये चीज़ possible ही नहीं हो सकती है. So first point is they are water soluble. Second point is they are not soluble in the organic solvents. Right? But exceptions are there. Some glycosides are also soluble in the organic solvents. Then third is they are solid, odorless, tasteless compounds. Sorry, not tasteless. So they are solid, odorless compounds. In taste, mostly they are bitter.
Mostly they are bitter in taste, but exceptions are also there in this point also, because your liquorous drug, जब हम लिक्वरस की बात करते हैं, मतलब आपका ग्लिसराइजा ग्लैब्रा जो कि मुलट्ठी होती है, आपने घर पे भी यूज़ की होगी जब आपको कफ वगैरह होता है, तो लिक्वरस के केस में हम देखते हैं वो थोड़ी मीठी होती है, जब भी हम उसको जो है कफ के अंदर जब हम लेते हैं उसको तो वो मीठी होती है, राइट, तो वो बिटर नहीं है, ये इसका एक्सेप्शन है। दूसरा स्टीविया, आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी बच्चों कि डायबिटीज़ के अंदर हम नॉर्मल शुगर आप नहीं ले सकते हो, तो उसके लिए आपकी शुगर फ्री करके एक जो है एड्स आती हैं काफ़ी सारी, कि आप शुगर लेके भी आप उसके आपकी जो भी शुगर का कंटेंट है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर स्टीविया के लीव्स प्रेजेंट होते हैं, स्टीविया प्रेजेंट होता है जो कि नेचुरल स्वीटनर का काम करता है, बट वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल उतना नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो स्टीविया का आपका स्वीट टेस्ट है और वो बिटर के अंदर नहीं आती है, तो ये एक एक्सेप्शन है, राइट। तो ये आप इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की ये है बच्चों कि ये जो है हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं बाय मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स मीन्स HCl की हेल्प से जो है ये हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं टू पार्ट्स में, वन इज शुगर एंड अदर इज नॉन शुगर पार्ट। सो ये इसकी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स। Now, what is the method of isolation for the glycosides? So, we generally used one method, one and only one method, that is Stas-Otto method. It is a very important method, Stas-Otto method. इसको डिटेल में हम नहीं करेंगे, बट अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा ये मेथड और इसके स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ग्लाइकोसाइड्स को अगर आपको आइसोलेट करना है किसी भी प्लांट मटेरियल से तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो और आप अपने ग्लाइकोसाइड्स को आइसोलेट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था कि अल्कलॉइड्स को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है 5 से 6 हमारे मेथड्स थे जिनको फॉलो करके हम किसी भी अल्कलॉइड्स को टेस्ट कर लेते थे। लेकिन ग्लाइकोसाइड्स के केस में बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स के केस में आपके पास अलग अलग क्लासिफिकेशन है ग्लाइकोसाइड्स की। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन के लिए आप अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करोगे, अलग अलग टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि आपने देखा है कि अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द ए ग्लाइकॉन पार्ट दे आर क्लासिफाइड इनटू द वेरियस कैटेगरीज लाइक योर फ्लेवोनॉइड्स, लाइक योर सेपोनिन्स एंड देयर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो सबके लिए अपने एक यूनिक टेस्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट टेस्ट है आपका शिनोडा टेस्ट, जो कि मेनली होता है फ्लेवोनॉइड्स के लिए। तो फ्लेवोनॉइड्स के केस में सिर्फ हम नेमिंग टेस्ट अपना यही परफॉर्म करेंगे। अगर हमें चेक करना है किसी भी ड्रग के अंदर फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है तो हम शिनोडा टेस्ट के लिए जाएंगे, राइट। सेकेंड टेस्ट इज बॉर्न ट्रैगर टेस्ट और मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर बच्चों हम बेस यूज करते हैं अमोनिया या फिर हमारा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये टेस्ट हम जनरली एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं। जिन भी ग्लाइकोसाइड्स के अंदर एंथ्रासीन या एंथ्राक्विनोन मोइटी प्रेजेंट होगी उनके लिए हम ये टेस्ट फॉलो करेंगे। और अगर आपके पास रेड कलर या फिर पर्पल कलर शो होता है तो इसका मतलब आपके जो पाउडर्ड सैंपल है, जो भी आपने मटेरियल लिया है जिसको आपको चेक करना है, उसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट, राइट। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। देन नेक्स्ट इज
फोम टेस्ट एंड हीमोलिसिस टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट बच्चों सैपोनिन्स के लिए किए जाते हैं। फॉर्म टेस्ट एंड हीमोलिसिस टेस्ट। फॉर्म टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर पाउडर्ड मटेरियल या जो भी आपका सैंपल है उसको आप डालते हो और उसके बाद वाटर के साथ आप उसको शेक करोगे। 1 मिनट के बाद आप उसको एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर रख दोगे और उसके बाद आप उसकी जो भी फॉर्म प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर, अगर प्रोड्यूस हुई है तो आप उसकी हाइट मेजर करोगे। तो अगर वो 1 सेंटीमीटर के जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर के करीब आपकी पहुँचती है तो मतलब उसके अंदर सैपोनिन प्रेजेंट है, क्योंकि सैपोनिन्स को हम फॉर्म ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, ये झाग प्रोड्यूस करते हैं, राइट। हेमोलिसिस टेस्ट मतलब हीमो मीन्स ब्लड एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना। तो इसमें हम ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड की एक ड्रॉप लेते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर और उसमें हम अपना पाउडर्ड मटेरियल जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट है जिसको हमें चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसकी हम एक ड्रॉप डालते हैं। तो अगर आपके आरबीसीज ब्रेक हो जाती हैं तो मीन्स आपका उसके अंदर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं, अगर नहीं होती हैं तो प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये टेस्ट है। देन फोर्थ टेस्ट इज किलर-किलानी टेस्ट। तो बच्चों किलर-किलानी टेस्ट के अंदर हम फेरिक क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली यूज करते हैं। अगर आपके पास रेड कलर अपीयर होता है तो आपके उसके अंदर डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट है, राइट। तो ये आपका किलर-किलानी टेस्ट है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज होता है, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हर एक टेस्ट के लिए जो भी आपकी क्लासिफाइड हैं ग्लाइकोसाइड्स उनके लिए आपका अलग अलग टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्ट हम किसी भी ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्टेरॉइड्स हो गए, स्टेरॉइड्स के लिए आप लिबरमैन बुचर टेस्ट करते हो, राइट। साइनोजेनेटिक टेस्ट के लिए आप सोडियम पिक्रेट टेस्ट करते हो। तो सबके लिए अपने अलग अलग टेस्ट हैं और उन्हीं टेस्ट को आपको परफॉर्म करना होता है। तो अगर जो भी आपके टेस्ट के लास्ट में जैसे जो भी कलर रिएक्शन शो करता है, अगर सपोज कीजिए या फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है या आरबीसीज को ब्रेक कर रहा है, तो जो भी उनकी इंडिकेशन होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर ग्लाइकोसाइड्स आपके सैंपल में, आपके पाउडर्ड मटेरियल में प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। तो ये इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। देन लास्ट में हम डिस्कस करते हैं बच्चों इनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारे ऐसे ग्लाइकोसाइड्स हैं जिनका रोल कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में होता है। कुछ ऐसे हैं जो कि एंटी रिमेटिक एक्शन शो करते हैं, यानी कि अर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि एनाल्जेसिक बिहेवियर शो करते हैं और फीवर को कम करते हैं, राइट। कुछ ऐसे हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करते हैं, यानी कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि लेग्जेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट, यानी कि स्टूल्स की जो मूवमेंट है उसको फास्ट कराते हैं ताकि वो इजीली जो है आपके बॉडी से इवैक्यूएट हो जाए, राइट। तो ये इनके कुछ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके अलावा भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए। इस कोविड सिचुएशन में प्लीज़ मास्क लगा के रखिए और सैनिटाइज़र प्लीज़ यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।